Hello everyone, welcome to the new lecture of Basics of Civil and Mechanical Engineering. And as we all know that in previous lecture we have started the second unit. Okay, we have started the second unit. First unit is almost completed, already completed. So in previous lecture we have started the second unit, and the first topic of second unit, that is environmental engineering and sustainability. This part we have covered this part in previous lecture. Okay, environmental engineering and sustainability. So today we will move to the second topic of unit number 2, that is geotechnical engineering. Okay, so we will study the basic things about soil mechanics or geotechnical engineering, and what are the different types of building foundation. Okay, so these are the basic terms in this geotechnical engineering, that is basics of soil mechanics, rock mechanics, geology, various types of foundation, basics of rock mechanics, and tunnel engineering. If you remember, rock mechanics and geology, this part we have already covered in this fundamental of building material. Okay, that in stone part we have covered this basics of rock mechanics. Okay, so in this lecture we will not discuss about this rock mechanics and geology because we have studied this topic before. Okay, if you want to study this again, you can go to that video of building material, in which the stone topic, in stone topic we have covered this part, that is the rock mechanics and geology. So today we will focus on the basic things about the soils and types of foundation in this particular section. Okay, so let's start this topic with the basics of soil mechanics. Okay, so let's see what is actually soil mechanics is. Okay, so geotechnical engineering. Okay, if the simple meaning of geotechnical is the term related to the soil mechanics. Okay, geotechnical engineering is the branch of science, okay, which deals with the underground structure, basically deals with the soil. Okay, so that's why it is called as geotechnical engineering. So basics of soil mechanics. In geotechnical engineering we have to discuss about the soil, properties of soil, how the different types of soil looks, and what are the specialty of different types of soils. So basically we have to study about the soil mechanics. As you can see, this is a simple structure of a soil. Okay, and you can see here it is a foundation is going on here on a red soil. So we have to discuss about the soil. So let's start. Firstly, how the soil can obtain, okay, the origin of soil, okay, where the soil comes from. So soils, as you can see the first line, soils are formed by weathering of rocks due to mechanical disintegration or chemical decomposition. सॉइल जो मिलता है हमें, वो कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है। जैसे कि कोई रॉक अगर पानी में फ्लो हो रही है तो उसमें वेदरिंग होगा, उसमें डिसइंटीग्रेशन कैसा होगा, जो सन रेज की वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा, रेनफॉल होगा। तो जो रॉक जो है वो धीरे धीरे करके जो वेदरिंग होता है रॉक का, ठीक है ना, या केमिकल डिकम्पोजिशन होता है रॉक का, उससे बनता है सॉइल। ठीक है, यहाँ से इस चीज से बनता है सॉइल, हमेशा याद रखें। Exposed rocks are eroded and degraded by various physical and chemical process. जो रॉक्स आपको दिख रही है उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, डिग्रेड होना चालू हो जाता है। वो क्यों होता है डिग्रेड? फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, ठीक है, एरोजन हो गया, पानी के साथ बह के आना, पानी उसके साथ सराउंडिंग में अगर फ्लो हो रहा है। उसके बाद केमिकल प्रोसेस भी होती है, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है ना, रिडक्शन होना, ये सब केमिकल प्रोसेस में आता है। तो इन सारी जो रॉक से ही मिलके बनता है सॉइल, ठीक है, रॉक से बनता है सॉइल। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ एरोजन आर पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड सम अदर प्लेस बाय विंड और वाटर। अब जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर। ओके, विंड हवा उसे उड़ा के ले जाती है, ठीक है ना, या कई दफा पानी के जरिए, वाटर के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। This shifting of material disturbs the equilibrium of forces on the earth and causes large scale movement and upheaval. इसमें क्या होता है, मटेरियल शिफ्ट होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल
पहुंचते जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से सॉइल है, ठीक है ना। ये जो सॉइल है ये किसकी वजह से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे विंड हो या वाटर हो। सॉइल क्या होगा, विंड इसे ब्लो करके लेके जाएगी तो कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होते होते यहाँ पे इस तरीके से अपहीवल भी बन जाते हैं, जिसे अपहीवल बोलेंगे, इस तरीके से हिली जोन बन जाते हैं। तो सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल एक्चुअली डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम फोर्सेज ऑन द अर्थ एंड कॉजेज लार्ज स्केल मूवमेंट एंड अपहीवल। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इस तरीके से अपहीवल बन जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ सॉइल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे, टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे। देखिए टाइप ऑफ सॉइल अलग अलग किस्म के होते हैं, बट हम इसमें ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या बेसिक सॉइल किस तरह फॉर्म होता है उसके हिसाब से कौन कौन से टाइप है। जैसे कि ग्लेशियल सॉइल है, ठीक है ना। अब जो ग्लेशियल सॉइल्स है ये कैसा होगा, ग्लेशियर में जो डिपोजिशन होगा, फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल सॉइल। उसके बाद एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल उसे बोलते हैं जो कि वाटर के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है और स्ट्रीम के नीचे डिपॉजिट होता आता है, या स्ट्रीम के साथ साथ डिपॉजिट होता आता है। तो जो पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल। आफ्टर दैट लैक्यूस्ट्रीन सॉइल, लैक्यूस्ट्रीन सॉइल वो होता है जो कि लेक के नीचे डिपॉजिट होता है, ठीक है, फॉर्म बाय डिपोजिशन इज इन क्वाइट लेक्स, लेक्स के नीचे जो डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड एज लैक्यूस्ट्रीन। मरीन सॉइल नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्म बाय डिपोजिशन इन द सीज, जो सीज के नीचे होता है दैट इज मरीन सॉइल। आफ्टर दैट एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है और डिपॉजिट किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से। जैसे कि इसे हम लोएस भी बोलते हैं, जैसे कि आप राजस्थान के जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विंड की वजह से जा रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं एओलियन सॉइल, ठीक है। विंड की वजह से जो डिपॉजिट होगा वो एओलियन। एलोवियल और एओलियन में फर्क समझिए, एलोवियल वाटर की वजह से डिपॉजिट होता है और एओलियन जो है वो विंड की वजह से डिपॉजिट होता है। आफ्टर दैट कोलोवियल सॉइल, कोलोवियल सॉइल क्या होता है, फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिन प्लेस बाय ग्रेविटी सच एज ड्यूरिंग लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आया, या कोई भी चीज़ की वजह से अगर इस तरीके से सॉइल ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं कोलोवियल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अब, सॉइल का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह होता है। हमेशा ये चीज़ आप याद रखेंगे, सॉइल में हमेशा तीन चीज़ें होती है, सॉलिड, लिक्विड और एयर। सॉइल के मास, सॉइल मास के अंदर ये तीन चीज़ें होती है, सॉलिड, लिक्विड और एयर, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे आप, जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सॉइल का एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए सॉलिड है, इसमें एयर से ए का फॉर्म में एयर भी है, और ये बीच में जो वाटर दिख रहा है, ठीक है, बीच में इनके होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर है इसमें। तो इसका कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है, सॉलिड पार्टिकल, वाटर एंड एयर। तो इसमें देखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, ये हर चीज़ इसमें होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हम थ्री फेज सिस्टम। जिस सॉइल में सॉलिड है, लिक्विड है और एयर है, इस तरह के सॉइल को बोला जाता है थ्री फेज, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें, इसलिए बोला जाएगा इसमें इसको बोला जाएगा थ्री फेज सिस्टम, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, ओके। आफ्टर दैट, as you can see this diagram, it consists of the solid products and also the air and the water, okay. As you can see, air, water and solid, that's why it is called as, because three things are here, air, water and solid, that's why it is called as three phase system. Now another term, that is fully saturated soil, fully saturated soil को बोलते हैं टू फेज सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती है, फुल्ली सैचुरेट, सैचुरेटेड का मतलब मॉइस्चराइज्ड, याद रखेंगे, सैचुरेटेड मतलब फुल ऑफ वाटर, ठीक है ना, इसमें वाटर ज़्यादा हो, सैचुरेशन, मॉइस्चराइजेशन, ये एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज एक्चुअली टू फेज सिस्टम बिकॉज it consists of only two things, that is water and solid. It does not have any air content, okay.
Air is not in this type of soil. Generally it is free from air, that's why it is called as only two-phase system, fully saturated soil. That's why it has only two things, water and solid. Okay, that's why it is called as two-phase system. Next is a dry soil. Now if you remember, saturated means full of moisture, and dry means completely you can say there is no water in this type of soil. Okay, it's a completely dry. So when you say dry soil, it is also two-phase system, but instead of water, it is air is filled with the solid. Okay, instead of water, water was in the case of fully saturated, but when we discussed about the dry soil, it will have air and solid both. Okay, water is missing, so that's why it is called as a dry soil, because it does not have water. So this is called as two-phase system. Okay, so this was about the soil mechanics, basics of soil mechanics. Now if you see your syllabus, it has a very important topic, that is the most important thing here is the various types of foundation. This is very important as far as civil engineers are concerned. The type of foundation plays a very important role. What are the different types of foundation, what are the strength, what are the weaknesses of types of foundation. So we will see about the types of foundation part. That is very important, because rock mechanics and rock geology, we have already discussed this in fundamental of building material part. So we will see the various types of foundation now. So let's get started. So we will see the foundation part now. So foundation, as you all know, foundation is the lowest part of the structure, okay, which carries the full load of the building, okay, which carries the full load of the building and transfer it to the subsoil, means soil. Okay, so foundation you all know. Let's remind you this. Every structure consists of two parts. First is foundation, that is also called as substructure. फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर दोनों सेम है. सब का मीनिंग अंडरग्राउंड से हो रहा है यहाँ पे. सब स्ट्रक्चर यानी कि जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सब स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने देखे थे सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर. सब सरफेस मीन्स अंडरग्राउंड, सो हियर सब स्ट्रक्चर मीन्स अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, और फाउंडेशन भी बोल सकते हो. एंड द नेक्स्ट इज द सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर इज बेसिकली द अबव the structure which is above the ground. Basically we live in the superstructure. Okay, so as just see this diagram. Suppose this is the foundation of a wall. Okay, so this is the tile flooring. Okay, this structure will be called as foundation. Okay, the below the ground, okay, the structure which is below the ground is called as foundation. Okay, so this is the ground level. Okay, this is the ground level, this is the ground level. Okay, and this is a little bit of tile flooring and all. That's why we can consider this part also in the foundation part. So it is the substructure. See this foundation up to foundation bed and tile flooring, this is called as substructure. Okay, the above the tile flooring, okay, the above the ground floor, the part is called as superstructure. So this is the foundation. Okay, we have to study about the foundation. So foundation is the lowest part, artificially prepared part of the structure, which are in direct contact with the ground and which transmit the load of the structure to the ground, are known as foundation or substructure. Okay, जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जो कि हमारे कॉलम की बेस में होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फाउंडेशन. और जो लोड जो है वो लेता है, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, स्लैब से लोड जाएगा बीम से जाएगा कॉलम में, कॉलम से जाएगा फाउंडेशन में, तो अल्टीमेटली फाउंडेशन उस लोड को सॉइल पर डाल देगा. ठीक है ना. द soil ground on which the foundation rests is called as foundation bed, foundation soil, and it is ultimately bears the load and interact with the foundation of the building. The lowermost part of the foundation which is in direct contact with the soil is called as footing. देखिए यहाँ पे ये इसको लोअर जो पार्ट है इसको बोलते हैं फुटिंग. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वॉल का पूरा लोड आ रहा है ये तो फाउंडेशन पे आएगा, फाउंडेशन इस लोड को डाल देगा ये सॉइल पे, इसके सॉइल के ऊपर है ना फाउंडेशन, तो सॉइल पे डाल देगा. ठीक है.
और सुपर स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज अबाउट द ग्राउंड लेवल इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं फाउंडेशन के टाइप। इसको हम थोड़ा स्पीड से देखेंगे, बहुत डिटेल में, आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको एक छोटा सा थोड़ा सा इसमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फाउंडेशन बेसिकली दो इसमें डिवाइड किया गया है। पहला होता है शैलो फाउंडेशन और उसको दूसरा होता है उसका अपोजिट डीप फाउंडेशन। नाम से समझ में आ रहा है, शैलो फाउंडेशन मतलब जिसकी जो डेप्थ है वो कम हो। ठीक है, डेप्थ कम हो, कितनी कम हो वो हम आगे देखेंगे। और डीप फाउंडेशन मतलब जो काफ़ी डीप जाता हो। ठीक है ना, काफ़ी जो एक्सकेवेट जिसकी गहराई काफ़ी हो या डेप्थ जिसकी ज़्यादा हो। ठीक है, शैलो फाउंडेशन में ही आप देखोगे तो दो टाइप के फाउंडेशन आते हैं, वॉल फुटिंग आती है, कॉलम फुटिंग आती है। वॉल फुटिंग में दो आती है, सिंपल वॉल फुटिंग, स्टेप वॉल फुटिंग। और कॉलम फुटिंग में आइसोलेटेड होता है, कंबाइंड कॉलम फुटिंग, कंटिन्यूस कॉलम फुटिंग और एक होता है स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी पार्ट आते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्च, काफ़ी डिटेल में आते हैं। और जो डीप फाउंडेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर है डीप के बारे में, केसन फाउंडेशन होता है, पियर फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, बॉक्स केसन, ओपन केसन, न्यूमैटिक केसन, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइप के फाउंडेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम शैलो और डीप में बेसिक फर्क क्या है। देखिए, शैलो फाउंडेशन तब बोलेंगे जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू द विड्थ, देन इट इज कॉल्ड एज शैलो फाउंडेशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप इस तरीके से फाउंडेशन मैं इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, ये हमने एक फाउंडेशन की है, ये एक्सकेवेशन किए थे, सपोज ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये सपोज ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल में हमने इतना पार्ट को एक्सकेवेट किया, इतना यहाँ पे इसे एक्सकेवेट किया। अब क्या होगा कि इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, इसकी ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ और ये हो गई इसकी विड्थ। ठीक है, अब अगर ये डेप्थ और विड्थ दोनों अगर बराबर है या फिर, ठीक है ना, या फिर इसकी डेप्थ कम है, ये अगर सपोज ये डेप्थ कम है किससे, इसकी विड्थ से, डेप्थ इज लेस और इक्वल टू द विड्थ, देन इट इज कॉल्ड एज शैलो फाउंडेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है डेप्थ इज इक्वल टू विड्थ, या डेप्थ हमेशा कम होना चाहिए विड्थ से, इसलिए इसे बोला जाता है शैलो फाउंडेशन। ठीक है ना, क्योंकि इसकी गहराई कम होती है। इसकी गहराई मैं आपको बता दूं तकरीबन 5 मीटर से कम वाले फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये इसे बोला जाता है शैलो फाउंडेशन। और हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसके टाइप्स को शैलो फाउंडेशन के। इसमें देखिए वॉल फुटिंग आती है, कॉलम फुटिंग आती है। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें इन्वर्टेड आर्च फुटिंग, राफ फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, मैं स्पीड से आपको बता देता हूँ, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड से हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शैलो फाउंडेशन देखो क्या होता है। शैलो फाउंडेशन में हम देखेंगे पहले वॉल फुटिंग क्या होती है। देखो एक वॉल है, उसके नीचे जो फाउंडेशन है दैट इज कॉल्ड एज वॉल फुटिंग। ठीक है ना, जो वॉल के नीचे जो फाउंडेशन है बेसिकली वो वॉल फुटिंग होती है। कंटिन्यूस होता है, जितनी लंबी वॉल होगी उतनी इसकी लंबी फुटिंग होगी। ठीक है ना, जैसे कि ये वॉल दिख रही है, कंटिन्यू फुटिंग भी उतनी लंबी होगी जितनी लंबी ये वॉल होगी। ठीक है, तो ये होती है वॉल फुटिंग। ठीक है, इसी में एक और टाइप आता है, देखो वॉल फुटिंग स्लोप भी हो सकती है। शैलो फाउंडेशन में वॉल फुटिंग देख लो। ठीक है ना, इस तरीके से स्टेप भी होता है फाउंडेशन में, इस तरीके से स्टेप फाउंडेशन होते हैं। ठीक है ना, स्लोप भी होता है इसमें, स्लोप वॉल फुटिंग भी होती है। स्लोप वॉल फुटिंग थोड़ी सी बेटर है, फिर उससे भी बेटर है स्टेप फुटिंग। ये देखो यहाँ पे वॉल फुटिंग आएगी, एग्जांपल है, कंटिन्यू जितनी लंबी वॉल आएगी उतनी लंबी फुटिंग आएगी। इसके अलावा कॉलम फुटिंग हम देखेंगे। कॉलम फुटिंग में बेसिकली 4 टाइप है, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग और कैंटिलीवर फुटिंग। इसको देख लेते हैं हम शॉर्ट में। देखो सबसे पहले आइसोलेटेड फुटिंग, अगर एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग हो, ठीक है, एक कॉलम के नीचे अगर एक फुटिंग हो तो उसे बोला जाता है आइसोलेटेड फुटिंग। जैसे कि एक कॉलम है उसके नीचे उसकी इंडिविजुअल फुटिंग है, तो इसे बोलेंगे हम आइसोलेटेड फुटिंग। उसी तरीके से कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा, मैं इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट इमेज के जरिए बताता हूँ। फिर जब दो कॉलम, जैसे कि ये दो कॉलम दिख रहे हैं ना प्लान में, देखो दो कॉलम है, ये दो कॉलम की अगर एक ही फुटिंग हो,
ठीक है ना। दो कॉलम की अगर एक ही फुटिंग तो उसे हम बोलेंगे कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, याद रखेंगे, उसे बोलेंगे हम कंबाइंड फुटिंग। उसके बाद देखो, ये देखो कंबाइंड फुटिंग इस तरीके से होती है। उसके बाद कंटिन्यूस फुटिंग होती है, देखो इस तरीके से कंटिन्यूस फुटिंग होती है कॉलम की। ठीक है, उसके बाद एक कैंटिलीवर फुटिंग होती है, देखो यहाँ पे। कैंटिलीवर फुटिंग में क्या होता है, जब दो फुटिंग अगर पास में हो, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस उनका कम हो, तो एक कॉलम एक बीम के जरिए, देखो ये जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप मतलब होता है बीम, तो बीम के जरिए इन फुटिंग को हम अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो लोड आ रहा है, हैवी लोड आ रहा है कॉलम का, ये आसानी से सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्च फुटिंग होती है, इस तरीके से आर्च शेप की फुटिंग जो होती है, इस तरीके से देखो आर्च फुटिंग होती है कॉलम की, इससे लोड अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सॉफ्ट सॉइल में हमेशा हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा राफ्ट फाउंडेशन, सबसे इम्पोर्टेंट, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। राफ्ट या मैट का मीनिंग हिंदी में बोलेंगे तो चटाई जो हम बिछाते हैं नीचे ज़मीन पे, जिस पे हम बैठते हैं, इसी से वर्ड है मैट या राफ्ट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे लोड बहुत हैवी हो और जो सॉइल है वो बहुत ही सॉफ्ट हो। When the load is very heavy and soil is very soft, in those places we can use raft or mat foundation। ठीक है, ये किस तरह दिखता है देखो, इसमें क्या होता है, जितना भी स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, पूरे के नीचे फाउंडेशन होगा। और फाउंडेशन कैसा होगा, इस तरीके से हम एक्सकेवेट करेंगे और पूरे इसमें इस तरीके से स्टील या लोहे को बिछा देंगे नीचे। तो पूरी जगह आप देखो, देखो यहाँ पे हर जगह, ये चार, एक रूम है जिसमें चार कॉलम है, चारों कॉलम के नीचे फाउंडेशन है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हर कॉलम के नीचे फाउंडेशन है। तो इसलिए इसे मैट या राफ्ट, पूरी तरीके से एक चटाई की तरह बिछ जाता है, इसलिए इसे मैट या राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है। स्टील का फाउंडेशन होता है, इस तरीके से मैं डायरेक्ट इमेज के जरिए बता दूँ। ये देखो स्टील कॉलम होते हैं, उसके नीचे जो फाउंडेशन है, उसके नीचे जैसे आयरन प्लेट लगाएंगे, उसके बाद ये आई सेक्शन इस तरीके से एक दूसरे से 90 डिग्री के परपेंडिकुलर लेयर्स में हम बिछा देंगे और नीचे कंक्रीट का पैड रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत हैवी लोड को बियर करने के लिए और स्पेशली स्टील कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। ये ग्रिल बन जाता है एक तरीके से, इसलिए इसे ग्रिलेज फाउंडेशन। उसके बाद हम देखेंगे अब डीप फाउंडेशन क्या होता है। जैसे कि हमने देखे शैलो फाउंडेशन में जो डेप्थ है वो विड्थ के बराबर होनी चाहिए या विड्थ से कम होनी चाहिए। तो डीप फाउंडेशन में क्या होगा, जो डेप्थ है, बेसिकली डेप्थ कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए विड्थ के। यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि आप अगर अंदाज़ा लगाओ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फाउंडेशन, इतना इस तरीके से डीप जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये फाउंडेशन दिखेगा। ये हमारा ग्राउंड का लेवल हो गया और ये हमने एक्सकेवेशन की, इतना नीचे गया। ठीक है, तो ये इसकी डेप्थ देखो कितनी ज़्यादा है विड्थ से। विड्थ से अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड एज डीप फाउंडेशन बिकॉज इट इज़ गोइंग वेरी डीप। ओके, तो ये कहाँ जनरली ये 5 मीटर के ऊपर होते हैं, इनकी जो डेप्थ है 5 मीटर के ऊपर होती है, याद रखिए। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल डीप फाउंडेशन, जो सबसे पहले याद रखेंगे, शैलो फाउंडेशन हमेशा बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। डीप फाउंडेशन मैक्सिमम टाइम पे, ऐसा नहीं, डीप फाउंडेशन भी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है देखो, इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ब्रिज जब बनते हैं तो जो फाउंडेशन आता है ना ब्रिज का, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रीम होती है, रिवर होती है, रिवर को आप थोड़ा सा कम गहरा आप एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, आपको डीप जाना पड़ेगा। जब तक कि ये इतना डीप जाना पड़ेगा जब तक कि हार्ड स्टार्टर नहीं मिल जाता, जब कि एक हार्ड सॉइल नहीं मिल जाता, उसके ऊपर हमारा फाउंडेशन रहेगा। तो जो डीप जा रहे हैं हम किस केस में जाएंगे, ब्रिज के केस में मैक्सिमम टाइम पे जाएंगे। ठीक है, इसलिए डीप फाउंडेशन हमेशा ब्रिज के लिए यूज होता है। डीप फाउंडेशन में 3 टाइप बेसिक याद रखेंगे, पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, कैसन। ये 3 होते हैं डीप के टाइप। सबसे पहले पाइल फाउंडेशन देखते हैं क्या होता है, आपको स्पीड से बताता हूँ। पाइल फाउंडेशन, pile is defined as a shaft of suitable diameter employed to transfer the load deep into the soil which may be capable of sustaining the load। इसका सिंपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये एक तरीके का इस तरीके से एक फाउंडेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कुलर शाफ्ट होती है। ठीक है ना, ये 3-4 शाफ्ट होती है
ठीक है ना, इस तरीके से शाफ्ट होती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है ना, अब सपोज हमने ये इसको इतना नीचे, ये शाफ्ट है एक तरीके की, ठीक है? इसको हम बहुत नीचे तक डालते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर। फिर इसके ऊपर हमारा बिल्डिंग का कॉलम खड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर शाफ्ट है, ये लोड को ट्रांसफर करती है कहाँ पे, डीप इनटू द सॉइल। ठीक है ना, डायमीटर एम्प्लॉय टू ट्रांसफर द लोड डीप इनटू द सॉइल। अब पाइल में भी शॉर्ट और लॉन्ग, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं पाइल। ये शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है। अगर 30 मीटर से ज़्यादा इसकी डेप्थ है तो मतलब वो लॉन्ग है। ठीक है, इसका एक आपको दिखाता हूँ इमेज। ये देखो, ये पाइल का इस तरीके से सर्कुलर पाइल। ये देखो पाइल फाउंडेशन, इसके ऊपर एक पाइल कैप और लो स्ट्रक्चर रखा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से डालते हैं हम इसे। इसके शेप होते हैं स्टील, प्रीकास्ट होता है, वुड का भी होता है। देखो, ये देखो पाइल के फाउंडेशन, ये ज़मीन के अंदर तक है। अब इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा और ये कॉलम खड़ा होगा और कॉलम इस पे लोड डालेगा। ये देखो इस तरीके से स्टील के पाइप, एच पाइप। ये देखो, ये कंक्रीट के पाइल है। ठीक है, ये कंक्रीट के पाइल है। ये देखो इस तरीके से गहराई में इस तरीके से ऑगर बोरिंग मशीन से इसको एक्सकेवेट करेंगे और फिर इसके बाद सॉइल ये डाल देंगे पाइल। ये देखो स्टील पाइल। ठीक है, पाइल फाउंडेशन है। देखो एग्जांपल, घर देखो, एक बिल्डिंग है जो पाइल्स के ऊपर खड़ी है। ब्रिज के ऊपर मोस्ट कॉमन है पाइल फाउंडेशन। अब देखते हैं पियर फाउंडेशन क्या होता है। पियर फाउंडेशन भी ब्रिज के लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसको मैं आपको इमेज के जरिए बता दूँ, ये होता है पियर फाउंडेशन। ठीक है ना, बिल्कुल पाइल की तरह दिखता है लेकिन इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो डायमीटर है देख लो ना, they may be made of massive such as 3 meter in diameter and could be sunk into the depth of 30 to 40 मीटर की गहराई। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। देखो पियर फाउंडेशन का एग्जांपल, कंक्रीट का बड़ा सा पियर, बड़ा सा मैसिव स्ट्रक्चर होता है अंडरग्राउंड। इसके बाद केसन। केसन तो हमेशा तीन टाइप के होंगे, बॉक्स केसन, वॉल वेल केसन और न्यूमेटिक केसन। केसन तो हमेशा ही ब्रिज के लिए यूज करेंगे। एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको देखो इस तरीके से देख लो। पहले देखो बॉक्स केसन इस तरह दिखता है, सर्कुलर दिखता है। अभी कैसा यूज करेंगे, देखो ये सपोज आपको ये ब्रिज की ये फाउंडेशन है। ठीक है ना, आपको ये फाउंडेशन बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से पानी को रोकना है। तो पानी को रोकने के लिए, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वाटर को रोकने के लिए आपको क्या इस तरीके से अंदर सबसे पहले डालना पड़ेगा। फिर इसके पानी क्या होगा, इसमें एंट्री रोक देगा। उसके बाद हम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। पानी पूरा रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। तो ये काम है केसन का, वाटर को रोकना एंट्री को और वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो इसमें भी तीन टाइप के होते हैं, वेल केशन होता है, न्यूमेटिक होता है, ठीक है, और बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये केशन भी, जनरली केशंस भी जो है वो आपके फाउंडेशन के लिए यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये था हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो अगला पार्ट है, ठीक है ना, उसे देखेंगे। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलिक्स क्या होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।